Good evening, students. I am going to start of 9th class mathematics second lesson, number system. The first lesson is some difficult. Then I will start that lesson after 2 to 3 lesson. Okay. The common lesson that is a number system. You have studied in 6th, 7th, 8th about numbers. I have discussed in last lecture or last video, you can see that we have discussed about all numbers. I will send you videos again, then you will understand clearly. I have discussed already natural numbers, whole numbers, prime numbers, etc. But in this chapter, in class 9th, in second chapter, we have to study in detail about mainly 4 numbers. First is natural number, second whole number, third integers number, and fourth is rational number. And in last, we have to discuss about real numbers. I am talking actually about in this chapter the rational number is the main key of this chapter. If we will talk about rational number, then we will see that in rational number, all numbers like natural numbers, whole number, integer number, all these 3 come within rational number. So we will talk in Hindi and English also, ताकि आप अच्छे से उसको डिटेल से समझ सकें. तो हमने आज नेचुरल नंबर का डिस्कशन कर चुका है, होल नंबर, ये सभी नंबर्स को मैंने डिस्कस लास्ट वीडियो में किया हूँ, वो मैं आपको फिर से भेज रहा हूँ वीडियो, आप उसको देखिएगा. तो इस चैप्टर में जो मुझे पढ़ना है, एक्चुअली पढ़ना है हमको रेशनल नंबर के बारे में. और स्टार्टिंग जो मुझे करना है इस चैप्टर में, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वी हैव टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, लाइक हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन 2 and 3. देन यू विल से देयर इज नो नंबर बिटवीन 2 and 3. देयर इज नो नेचुरल नंबर और होल नंबर बिटवीन 2 and 3, बट देयर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 2 and 3. हाउ? We have to discuss. But before this, I am going to some description in short, and then I will tell you the number like natural number denotes by n. In short, in this chapter, you have to study about is in short form, like natural number n, whole number, then integers number, and then rational number. Whole number denotes by W, natural number n, and integers number z, and rational number q. Now I am going to tell you about some numbers in brief, mainly 4 or 5 numbers. तो पहला डिस्कस करने जाने, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर. इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं करना है, नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लेसन, फॉर योर चैप्टर. एन जहाँ कैपिटल एन होगा, इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नेचुरल नंबर. ऑल ऑफ यू नो अबाउट नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटेबल नंबर्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स. एग्जाम्पल, that is 1, 2, 3, 4, 5, etc. Second, whole number. That is W. We will always denote whole number by W. Example, no, you know that when 0 add in natural numbers,
0, 1, 2, 3, 4, 5 and etc. That's third one is integers number. Integers numbers denoted by Z. So you have seen that this is number line in center, that is 0. 0 is neither positive nor negative. We have discussed earlier. Here -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4, +5. These are the integers number. Now another one is rational number. If we will define, I have already defined it, but in short we can see that the numbers which is in the form of ratio or P upon Q, the number which is not in the form of ratio or P upon Q, but we can write that number in the form of P upon Q, that is called rational number. Example, 2 upon 3, 0. Fourth one is rational number. Denoted by Q. Example, all natural number, whole number and integers numbers are rational number, but in definition numbers is in the form of P upon Q. P belongs to, it means P may be natural number, whole number, integers number, but denominator never can be 0. N, W and Z. You can write in the form of also Q, but Q does not equal to 0, never. It means example, -2 upon 3, 3 upon 2, 0, -1, -4. You can write anything except ratio or the fraction where denominator never be 0. 0.4, it is rational number, but 4 upon 0, this is not a rational number. We have discussed in detail in last lecture, and I will send you video, then you have to watch carefully about that video, and then you have to learn in detail. Then you will understand this chapter easily. The rational number, but in short, where n denotes to natural number, W denotes to whole number, Z denotes to integers number, and Q rational number. This is some introduction about the symbol and the numbers. In this chapter, there are some symbols like element and subset. The word subset,
सब सेट समझने के लिए पहले आपको सेट समझना पड़ेगा। व्हाट इज सेट? सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ सेट, दिस इज द सिंबल ऑफ सेट। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ subset, you can say, and there is also a symbol, this is symbol of element, this is a symbol of element। ये तीनों क्या सिंबल है वो मैं आपको पर डिस्कस कर देता हूँ। इसको ज़्यादा समझेंगे नहीं, फिर बुक से समझ नहीं आएगा। तो पहले सेट क्या होता है ये जाने। किसी भी चीज़ का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट ऑफ दैट थिंग। जैसे एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर हो गया, तो नेचुरल नंबर जो है उसका एग्जांपल क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट। किसको लिखना है? नेचुरल नंबर को। तो हम कैसे लिखेंगे? तो दिस इज द सिंबल ऑफ सेट। हमेशा जो सेट होता है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं भी फिर आपको सेट को डिटेल में पढ़ाता, लेकिन जितना जरूरत है उतना आपको इसमें पढ़ना है। ये सिंबल सेट का होता है। ये सिंबल क्या होता है? सेट का होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अब इसमें एग्जांपल क्या आएगा? 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये किसका सेट हो गया? नेचुरल नंबर का। तो क्या लिखेंगे? n इक्वल टू, ये जो सिंबल ये वाला, ये सिंबल क्या है? सेट का सिंबल है। ये क्लोज हो गया। 1 2 3 4 5 ये सभी। तो 1 जो है, 1 n का एलिमेंट है, सदस्य है। 1 जो है मेंबर है किसका? n का। तो हम क्या लिखेंगे? n, 1 इज एलिमेंट ऑफ n, 1 इज एलिमेंट ऑफ n। डिटेल में आपको फिर बताऊंगा। तो इसमें ऐसे पढ़ेंगे 1 इज मेंबर ऑफ n, मतलब 1 जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, सदस्य है। 2 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ n, 3 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ n। बट अगर यहाँ पे आपको ये बोले कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन होता क्या 0 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो क्या जवाब होता? नहीं है। 0 जो है वो क्या है? होल नंबर का एलिमेंट है, होल नंबर का सदस्य है। 0 किस में आता है? होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 0 क्या है? 0 किसका एलिमेंट हो गया? 0 इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। सेकेंड थिंग, अगर इसी को अगर होल नंबर में लिखना हो तो n को लिखें, फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? ये होल को w। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? नेचुरल नंबर क्या करना पड़ेगा? 0 1 2 3 4 5 ये सभी इस तरह से। दोनों में सिर्फ फर्क क्या है? इसमें 0 ऐड नहीं था, इसमें 0 ऐड हो गया, क्या हो गया? होल नंबर। इसको इस तरह सेट के रूप में लिखते हैं। सबसेट क्या होता है वो फिर आएंगे, पहले हमको सेट जानना था, ये मैं आपको सेट बता रहा हूँ। एक्चुअली पढ़ना डिटेल में पढ़ता है, लेकिन आपको ये टॉपिक नहीं है जैसे सेट पढ़ना, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता। डब्ल्यू हो गया। फिर क्या है? जेड। जेड किसको बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर को। उसका एग्जांपल क्या होता है आपको मालूम है? तो ये जो है, ये समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इधर क्या लिखते हैं? -1 -2 -3 -4 -5। आपको समझ में ऐसा लिख रहा हूँ, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखना है। तो लिखना कैसा है? इसको लिखना है जेड, क्या लिखेंगे आप? 0 1 2 3 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3 इस तरह से। तो अब इसमें से अगर कहें -3 जेड का एलिमेंट है कि नहीं है? -3 जेड में आता है। जेड -3 इंटीजर्स नंबर है, इसलिए -3 इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। 0 इज एलिमेंट ऑफ जेड। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी रहे कि 0 जेड का भी एलिमेंट है, जेड में भी 0 है और डब्ल्यू में भी 0 है, तो 0 इज एलिमेंट ऑफ बोथ होल नंबर एंड इंटीजर्स नंबर। 0 जो है वो डब्ल्यू का भी, मतलब होल नंबर का भी एलिमेंट है, मेंबर है, और जेड का भी एलिमेंट है, जेड का भी मेंबर है।
लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है। ठीक है, फिर मैं इसको सिंबल में लिखूंगा, सिंबल में कैसे लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका Q। अगर Q को लिखें, Q क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखिए, 2/3 लिख दिए, -2/3/4 लिखिए, -2/3 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपको कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। तो ये मेन जो है इसको सेट बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, दिस इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब इसको मुझे सिंबल में लिखना है, तो सिंबल में आपको मैं बता रहा हूँ। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको एक राइट साइड में आपको कॉर्नर में आप ध्यान रखिएगा N W Z एंड Q। हमें ध्यान रखना ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स नंबर है और ये रेशनल नंबर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो पहले ये जो सिंबल है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे 1 एलिमेंट ऑफ n, यानी कि 1 नेचुरल नंबर है, 1 इज एलिमेंट ऑफ n, 2 इज एलिमेंट ऑफ n, 2 नेचुरल नंबर है। 2 किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का है। 3 भी आएगा, 4, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आवे 0 नेचुरल नंबर का मेंबर है, अगर नेचुरल नंबर आप देखें तो मैं बताया था क्या आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो 0 तो है नहीं नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग टू n, 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। -4 नेचुरल नंबर है, नहीं है। -4 है क्या, ना तो होल नंबर भी नहीं है क्या, इंटीजर्स नंबर है। तो -4 बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर एंड रेशनल नंबर बोथ। तो -4 डज नॉट बिलोंग टू n, बट 0 बिलोंग्स टू W, 0 होल नंबर है। 5 बिलोंग्स टू W, क्यों, ये जो है ये 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3, सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, होल नंबर में 0 आता है, यही फर्क है, यही डिफरेंस है। तो 5 बिलोंग्स टू W, 5 इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। -7 बिलोंग्स टू W, नो, क्यों, -7 इज नॉट ए होल नंबर, -7 इज एन इंटीजर्स नंबर, तो -7 डज नॉट बिलोंग टू W। -2/3 बिलोंग्स टू W, नो, -2/3 डज नॉट बिलोंग टू W। -2 बिलोंग्स टू W, नो, अब प्लस होता तब ये बिलोंग्स करता। क्लियर कॉन्सेप्ट, कौन किस में आता है, कौन किसका मेंबर है, या कौन किसका एग्जाम्पल है, उसके बारे में आपको बताना है। तो एलिमेंट, ये जो किसका सिंबल है, इसका एलिमेंट है। अब नेक्स्ट जो है आपको, ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर। सिमिलरली इसी तरह से हम इंटीजर्स नंबर को लिख सकते हैं। इंटीजर्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, Z से। Z क्या है, इंटीजर्स नंबर। इसमें क्या आएगा, 0 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 -3, यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर भी होगा और निगेटिव नंबर भी होगा, साथ ही साथ क्या आएगा, 0 भी होगा, लेकिन रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 0 बिलोंग्स टू Z, सही है। -3 बिलोंग्स टू Z, ये भी सही है। 5 बिलोंग्स टू Z, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, 0 भी है, सभी क्या है, ये इंटीजर्स नंबर है। बट अगर कहे 2/3 बिलोंग्स टू Z, तो क्या 2/3 इंटीजर्स नंबर है,
नहीं है। 2/3 डज नॉट बिलोंग टू जेड। -4 बिलोंग्स टू जेड, यस। -4/5 बिलोंग्स टू जेड, नो। क्यों? ये फ्रैक्शन में आ गया और जो इंटीग्रस नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं आता है। हाँ, अब ये सभी नंबर्स किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 0 बिलोंग्स टू क्यू, क्यू क्या रेशनल नंबर है? रेशनल में क्या होता है? एग्जाम्पल 0, 1/2, 1, 2, -3, -4, 4/5, 2/3, -2/3। इस तरह से ये नंबर पॉजिटिव में भी होगा, निगेटिव में भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, जीरो भी होगा। ये सभी किसमें? रेशनल नंबर में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात कि P/Q हो तो ये Q जीरो नहीं होगा, यानी 0/4 हो सकता है। ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये 4/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। बस ये फर्क है। तो 0 रेशनल नंबर को बिलोंग करता है, यानी 0 रेशनल नंबर में आता है। फिर 1/2 बिलोंग्स टू Q, -2/3 बिलोंग्स टू Q, +5 बिलोंग्स टू Q, 0/3 बिलोंग्स टू Q, 3/0 डज नॉट बिलोंग टू Q, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 हो गया। और रेशनल नंबर का डिफिनेशन कहता है डिनोमिनेटर नेवर कैन बी 0। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब मैं फिर से बारी बारी से आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रस नंबर और रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक कंसेप्ट अलग से देता हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कौन किसके अंडर आता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। चलिए मैं उसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, अब मुझे समझना है सबसेट। अब ये जो वर्ड है सबसेट, ये सबसे मीन्स क्या होता है? उसके नीचे वाला। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोग क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे। 2 कैप्टन होता है, एक कैप्टन, दूसरा वाइस कैप्टन। तो कैप्टन क्या होता है? बड़ा होता है। वाइस कैप्टन क्या होता है? उससे छोटा होता है। तो वाइस कैप्टन जो है, जो भी काम करेगा या जो भी काम करेगा वो सब किसके अंदर आता है? कैप्टन के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं वाइस कैप्टन इज सबसेट ऑफ कैप्टन। जो उप कप्तान है वो कप्तान के अंदर आता है। तो वाइस कैप्टन इज सबसेट ऑफ कैप्टन। जैसे अभी इंडिया में आपको पता होगा, थोड़ा जीके की तरफ जाते हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू किनके नीचे हैं? रामनाथ कोविंद के। प्रेसिडेंट के नीचे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट इज सबसेट ऑफ प्रेसिडेंट, छोटा है। यानी कि जो काम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे वो सारा किसके अंदर आता है? प्रेसिडेंट के अंदर आता है। लेकिन प्रेसिडेंट का सारा काम वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का सारा काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब जो W है, N है, इसमें N और W में छोटा कौन है? छोटा एक्चुअल वर्ड सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इन दोनों में अगर कंपेरिजन करें, N का सभी एलिमेंट यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी किसमें है? W में है। लेकिन W का सभी एलिमेंट N में नहीं है। किसके कारण? 0 के कारण। N का सभी एलिमेंट, सभी मेंबर वो किस में है? W में है। लेकिन W का सभी मेंबर N में नहीं है। तो छोटा कौन हुआ? N हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? N इज सबसेट ऑफ W। ओके, अब इन दोनों में कंपेरिजन कीजिए। W का सभी एलिमेंट किसमें? Z में है। लेकिन Z का सभी एलिमेंट W में नहीं है। क्यों? क्योंकि Z में 0 + 1 + 2 + 3 द नंबर्स 0 + 1 + 2 + 3 इज प्रेजेंट इन W।
बट -1, -2, -3 दिस इज नॉट मेंबर ऑफ, दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ W। तो छोटा कौन हुआ? W छोटा हुआ, तो W क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। किसका? Z का। W किसका सबसेट है? Z का। अब जो Q है, Q में ये सभी आते हैं, N का सभी मेंबर होगा, W का सभी मेंबर होगा, Z का भी सभी मेंबर होगा, किसमें? Q में मेंबर होगा। नेचुरल नंबर Q में जो भी एग्जांपल होगा सब किसका? नेचुरल नंबर का होगा। होल नंबर का भी सारा एग्जांपल इसमें आपको रेशनल नंबर में मिलेगा, और Z यानी कि इंटीग्रल नंबर का सारा एग्जांपल किसमें मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। तो इन चारों में अगर कंपेरिजन करें तो सबसे बड़ा कौन है? रेशनल नंबर Q। Q के अंडर सभी आते हैं, या Q से सभी छोटा है। तो N जो है, ये N किसका सबसेट हो गया? W का। W किसका सबसेट हो गया? Z का। Z किसका सबसेट हो जाएगा? Q का। तो हम क्या लिखेंगे? Z इज सबसेट ऑफ Q। ठीक है, इसका मतलब है N, W और Z तीनों किसका सबसेट है? Q का। इसको ऐसे लिख सकते हैं, N सबसेट है किसका? W का। W सबसेट किसका है? Z का। और ये सबसेट किसका है? Q का। सबसे छोटा N, उससे बड़ा मतलब, बड़ा करने मतलब N का सभी एलिमेंट किस में होगा? W में। देखिए N का सभी एलिमेंट किस में होगा? W में। W का सारा एलिमेंट किस में होगा? Z में। और Z का सारा एलिमेंट किस में होगा? Q में। तो ये इतना कंसेप्ट है। जब आप इतना अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छी तरह से, आज मैं इतना ही रखूँगा, मैं सारा वीडियो में आपको सेंड करूँगा अभी, आप इसको केयरफुली इसको स्टडी कीजिए, फिर इस पर जो कल मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तब आपको आसानी से समझ होगा। आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, फिर कोई क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप पे